So now we are going to start with subsection 4, which deals with what? Prohibition on the abuse of dominant position. So, as I mentioned, Competition Act dominant position को गलत नहीं बोलता, वो बोलता dominant position is fine, it is possible, but your dominance should not result in any kind of abuse. अगर आपका dominant position के बाद आप market abuse करने लग जाते हो, उससे हमें प्रॉब्लम है. So in section 4 you'll get into such agreements, or you'll find certain situations, agreements where the party, the person, the enterprise, the SSE is in the dominant position, and through any of his acts यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ abuse किया गया है. So we'll see that. So आप देखो section 4 which talks about the abuse of dominant position, and it says that no enterprise or group shall abuse its dominant position. So absolute prohibition यहाँ पर आ गया. Now there shall be an abuse of dominant position if the enterprise or group. ये क्या हो गया? What does this mean? What does this mean when it says there shall be an abuse of dominant position if the enterprise or the group? ये क्या provision हो गया? Which type of provision is this now? नहीं, deemed provision, presumed. राइट जैसे सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 में हमने देखा था. तो यहां पर आप देखो, where you directly or indirectly you impose unfair or discriminatory condition in the purchase or sale of the goods, price, discriminatory price in the purchase or sale including predatory pricing of the goods or services. अभी हम देखेंगे predatory pricing क्या होता है. We'll have to discuss this in detail, right? Then there is an exception here, proviso मैं उसको ignore कर रहा हूँ. I'm not reading this proviso explanation right now. फिर यहाँ पर देखो, it limits or restricts the production of goods or provision of services or market thereof, or limits or restricts the technical scientific development relating to the goods or services to the prejudice of consumer. Then indulges in practice or practices resulting in denial of the markets. Right, ये 5 कुछ नहीं है. Otherwise makes conclusion of contracts subject to acceptance by other parties of supplementary obligations which by their nature or according to commercial usage have no connection with the subjects of such contract, or uses its dominant position in one relevant market to enter into or protect the other relevant market. काफी कुछ यहाँ पर आपको बताया. और आगे क्या बता रहे हैं? That for the purpose of this section, the expression dominant position means a position or a strength which is enjoyed by the enterprise in the relevant market in India, which enables it to see when you are into the dominant position. ये बताया, where you are in a position that you can operate independently of the competitive forces prevailing in the market, or you can affect the competitors or consumers or relevant market in its favor. So जियो के केस में यही आया था कि आप क्या कर रहे हो, यू आर अफेक्टिंग द कॉम्पिटिटर्स एंड कंज्यूमर्स इन द रेलेवेंट मार्केट इन इट्स फेवर. दर्शन, कल आपने पूछा था जियो वाला केस क्या है. प्रोबेबली हमारा कल तो लेक्चर नहीं है, बट परसों के लेक्चर में हम जियो के केस को डिटेल में यहां पर डिस्कस करेंगे कि जियो का केस यहां पर क्या था. बट काफी हद तक आप देखो सेक्शन 4 में यहीं पर आया था दैट आप डोमिनेंट पोजीशन पे हो. Why you are at dominant position? Because you are able to. Yes, exactly. We will see. आपको ये चेक करना है क्या जियो ने एक्चुअल में प्रीडेटरी प्राइसिंग किया था कि नहीं किया था. राइट. सो आप ये देखो, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हो, आप प्राइसेस को अपने कॉस्ट से नीचे गिरा देते हो, सो दैट क्या हो,
आपका जो कंपटीशन है वो मार्केट में खत्म हो जाए, राइट? कितने दिन तक कोई चलाएगा लॉसेस में? उसके बाद में तो वो परेशान होकर मार्केट छोड़ के जाएगा ही, और उसके बाद में आप धीरे धीरे प्राइसेस को बढ़ाओगे, राइट? प्रीडेटरी प्राइसिंग जियो ने किया कि नहीं किया, विल हैव टू सी। लाइक वॉलमार्ट, अगेन वॉलमार्ट भी आप नहीं बोल सकते कि वो प्रीडेटरी प्राइसिंग करता है क्या। वॉलमार्ट को क्वांटिटी का फायदा होता है, बल्क, उनको बल्क में क्वांटिटी का यहां पर फायदा हो जाता है, राइट? अच्छा, आप अभी चेक करो। अगर मैं बताता हूं प्रीडेटरी प्राइसिंग के लिए, सो प्रीडेटरी प्राइसिंग एक बार आप फिर से समझो। प्रीडेटरी प्राइसिंग मीन्स द sale of goods or provision of services at a price which is below the cost as may be determined by the regulations of production of goods or provisions of services. Again, the objective is to reduce the competition or eliminate the competitors. चाइनीज कंपनी बहुत प्रीडेटरी प्राइसिंग करती है, और इसीलिए इनके ऊपर क्या लग जाता है, कस्टम्स में आपने शायद पढ़ा, आई डोंट नो आपके लेवल पे है कि नहीं है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाता है यहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगा, क्योंकि आप क्या करते हो, चाइना, यू ऑल नो अबाउट एंटी डंपिंग ड्यूटी, है आपके कस्टम्स सिलेबस में? इज कस्टम्स देयर इन योर सिलेबस, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड ऑल, सेक्शन 8 ऑफ द कस्टम एक्ट? नो। अच्छा, अभी तक कस्टम नहीं हुआ, ओके। तो देखो मैं आपको सिंपली बताता हूं क्या होता है। सी आई टेल यू, चाइना में एक गुड्स है जो कितने का प्रोड्यूस हो सकता है, चाइना में ये गुड्स प्रोड्यूस हो सकता है 10 रुपीज का, और इंडिया में भी ये गुड्स कितने का प्रोड्यूस होगा, इंडिया में भी ये गुड्स प्रोड्यूस होगा 10 रुपीज का, ठीक है? जब चाइनीज मार्केट में आता है, वो इसके ऊपर 2 रुपीज का प्रॉफिट लगाता है, तो इसका सेलिंग प्राइस 12 रुपीज हो गया। अब इंडिया वाला इसके साथ कॉम्पीट कर रहा है, तो वो भी यहाँ पर 2 रुपीज का प्राइस लगाता है, और ये कॉम्पीट करता है, ठीक है? दे बोथ कॉम्पीट, जिसका क्वालिटी अच्छा वो निकल जाए। नाउ व्हाट डज चाइनीज गवर्नमेंट डू? चाइनीज गवर्नमेंट चाइना को, जो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है, जो भी एक्सपोर्टर है, उसको बोलता है तुम एक काम करो, तुम इंडिया में जाके अपना माल डंप करो। डंप करो मतलब बल्क में अपने गुड्स को बेचो, और कितने का बेचो, सेल इट फॉर 7 रुपीज। ये चाइनीज मैन्युफैक्चरर जो है वो बोलता है सर या गवर्नमेंट, मैं 7 रुपीज में बेचूंगा तो मेरे को तो लॉस हो जाएगा, बिकॉज आप देखो 10 रुपीज इज माई कॉस्ट, so how can I sell it for 7 rupees? So Chinese government says that you sell it for 7 rupees in India, I will give you 5 rupees from my pocket. So ultimately आपको तो 12 का 12 रुपीज ही मिल रहा है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? अर्लियर बट इट वॉज 12 वर्सेस 12, now it will be 12 versus 7. So what is going to happen? The Indian company is not going to sustain for long in the market, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस ही 10 रुपया है, तो साथ के साथ तो कंपटीशन कर ही नहीं सकता भाई। अगर चाइनीज यहाँ पर इस 2 रुपए के प्रॉफिट को, मार्जिन को कम करके 1 रुपी कर दे, तो इंडियन वाला भी चलो प्राइस रिड्यूस करके 1 रुपी कर देगा, बट एट द एंड वो कॉस्ट तो रिकवर करेगा। यहाँ पर तो कॉस्ट से ही नीचे बेच रहा है वो, तब आप कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। तो इससे क्या होगा, ये जो इंडियन कंपनी है ये शट डाउन हो जाएगा, और इस तरह से करके और भी जो सप्लायर्स है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, वो सब मार्केट से उड़ जाएंगे। फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपनी का राज होगा, और वो है चाइनीज कंपनी का। और फिर ये 7 का 70 करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं, आपको यही खरीदना पड़ेगा। एक तो ये, दूसरा, जैसे जैसे ये इंडियन कंपनीज बंद होंगे, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टूटेगा। अब आपको पता है चाइना आज की डेट में क्यों इतना उछल रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा है उसके पास। अब क्यों है उनके पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा? बिकॉज उन्होंने अपने आप को एज मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया था। नाउ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आपका पूरा इकोनॉमी डिपेंड करता है। सो राइट नाउ ऑल्सो
The world is going through this pandemic and even India is going through this pandemic. But what India actually needs is a boost in the manufacturing sector. देखो एक अगर फैक्ट्री लगेगा तो एक फैक्ट्री में उसका जो ओनर होगा उसको काम मिला, करेक्ट। इसके अलावा अगर आप देखो तो वहां पर वर्कर्स होंगे, अकाउंटेंट्स होंगे, उन सबको काम मिलेगा। फिर आप चेक करो, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला है ये ऑडिट करवाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम देगा। ये लेट्स से एक कंपनी सेक्रेटरी को हायर करेगा, फॉर्म अ कंपनी और एलएलपी, तो यहाँ पर उसको काम मिलेगा, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जॉब क्रिएशन के लिए माना जाता है। और जॉब क्रिएशन जब होगा, सबको जब काम मिलेगा तो सब लोग फिर पैसे कमाएंगे। सब पैसे कमाएंगे तो सब फिर पैसा खर्चा भी करेंगे। खर्चा करेंगे तो और डिमांड क्रिएट होगा, और डिमांड क्रिएट होगा तो और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और इकोनॉमी फ्लरिश करेगा। चाइना का यही प्लान है कि इंडिया में क्या करो, पहले कॉस्ट से नीचे प्राइस को भेज दो, इनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खत्म कर दो। फिर उनके पास जब ऑप्शन नहीं रहेगा तो वो फिर हमसे ही गुड्स खरीदेंगे, और फिर हम 7 का 70 करें, कोई रोकने वाला नहीं है। सो दिस इज द एजेंडा ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट। ये तो प्रूव हो गया था, इसीलिए आई थिंक सेक्शन 8C करके इंट्रोड्यूस किया गया था इन द कस्टम एक्ट, जिसमें एक्सक्लूसिवली जो चाइना से गुड्स आता है उसके ऊपर 4 इयर्स तक हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया। बट अदरवाइज चाइना के अलावा कोई और कंट्री ये काम करे तो उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये चाइनीज आदमी 7 रुपए में यहाँ पर गुड्स बेचेगा, इसको चाइनीज गवर्नमेंट कितना पे कर रहा है, 5 रुपया ना, तो हम यहाँ पर 5 रुपए का ड्यूटी लगा देंगे। ये ले बेटा, खत्म काम। तो चाइनीज गवर्नमेंट को नुकसान होगा, और इस मैन्युफैक्चरर को तो खैर कोई ना फायदा कोई ना कोई नुकसान, बिकॉज इधर से 5 मिलेगा, ये इधर 5 पे कर देगा, राइट। तो इसको भी एक तरह से नुकसान हो जाएगा, करेक्ट। सो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका गुड्स अल्टीमेटली इंडिया के मार्केट में कितने का बिकेगा फिर, 12 रुपए का, एंड इट इज गोइंग टू कॉम्पीट। तो कहीं पर भी अगर आपने एंटी डंपिंग ड्यूटी देखा तो वो नुकसान। सो ये होता है प्रीडेटरी प्राइसिंग, जब आप प्राइस कम। सो ये हम बात कर रहे थे चाइना एंड इंडिया के लिए। विद इन इंडिया अगर किसी का ये स्ट्रेटेजी है कि मैं एक काम करता हूँ, पहले कॉस्ट से नीचे गुड्स को बेच देता हूँ, कंपटीशन को खत्म कर देता हूँ, और जैसे ही कंपटीशन खत्म होगा मैं धीरे धीरे प्राइसेस को ऊपर उठा दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, प्रीडेटरी प्राइसिंग। अब आप बोलोगे सर रिलायंस ने क्या प्रीडेटरी प्राइसिंग किया, सी इट्स डिबेटेबल। इफ यू सी जियो फाइबर, उन्होंने शुरू में जियो फाइबर फ्री में दिया, उसके बाद में जियो फाइबर जो था उसका उन्होंने क्या कर दिया, प्राइसिंग रखा, और बोला आपको जियो टीवी भी साथ में लेना होगा। नाउ इफ समवन सेज दैट आई डोंट वांट जियो टीवी, तो वो बोलता है कि सिर्फ जियो टीवी, मतलब जियो टीवी। और बेसिकली दिस आई नोटिस्ड इन माय बिल्डिंग, मेरे को सिर्फ जियो फाइबर चाहिए, मैं टीवी वैसे भी नहीं देखता, ठीक है। मी एंड माय वाइफ वी टू स्टे हियर, तो टीवी हम लोगों का वैसे भी बिल्कुल देखना नहीं होता, बिकॉज एनीवे आप चेक करो, इफ यू हैव टू वॉच न्यूज यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब, करेक्ट। सेकेंडली इसके अलावा आपके पास 3 चीजें हैं, एक आपके पास हॉटस्टार, एक आपके पास नेटफ्लिक्स, और एक आपके पास है amazon प्राइम। सो amazon प्राइम मेरे पास ऑलरेडी था, हॉटस्टार था, नेटफ्लिक्स चलो अभी लॉकडाउन में ले लिया, बट ये भी लेने के बाद, नेटफ्लिक्स भी लेने के बाद कोई इतना टाइम नहीं मिला कि आप देखते हो। सो इसमें कुछ कुछ अगर आपको मूवीज या सीरीज अगर आपको देखना तो यू कैन वॉच इट हियर, रेस्ट न्यूज जो है वो आप देख सकते हो। और टोटल जो मेरा टीवी देखने का टाइम होता था इट वाज लेट्स से 15 to 30 मिनट्स इन अ डे, और वो भी इन्हीं सब न्यूज में, वो भी डिनर और लंच करते, सो आई वाज लाइक आई डोंट नीड टीवी, आई जस्ट नीड जियो फाइबर इंटरनेट। तो पहले तो जियो फाइबर इन्होंने कुछ 3 महीने तक फ्री में दिया, 3 से 6 महीने rather ज्यादा टाइम इन्होंने फ्री में दिया। फिर इन्होंने जियो टीवी लॉन्च कर दिया, एंड दे मैंडेटेड कि आपको सेट टॉप बॉक्स लगवाना पड़ेगा। आई सेड नहीं लगवाना, तो बोलते जियो फाइबर का भी उतना ही प्राइस है जितना जियो टीवी का। सो अल्टीमेटली आई एम पेइंग 1048 rupees फॉर जियो फाइबर, विच एज पर देम आई से जियो टीवी फ्री में मेरे को वो दे रहे, बट नथिंग इज एज सच वैसा फ्री। उन्होंने यहाँ पर ये प्राइस को फिक्स कर दिया कि जियो फाइबर का यही प्राइस है, सो सिर्फ इंटरनेट का प्राइसिंग कुछ है ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आप बोल सकते हो दे मेड इट वेरी कॉम्प्लेक्स वे एंड ड्राफ्टेड इट इन अ वेरी नाइस मैनर, करेक्ट। मतलब वहां पर ऑब्वियसली एक्सपर्ट लॉयर्स वहां पर बैठते हैं कि कल को अगर कोई केस आए तो आप उसको वर्कआउट कर सको। तो अब यहाँ पर वो ये तो बोल ही नहीं रहे ना, दे आर नॉट आस्किंग मी टू पे फॉर जियो टीवी सेपरेटली, they are just saying that if you want Jio fiber, you'll have to take the connection of Jio TV,
and we are charging you only for Jio Fiber and not for Jio TV. Now it is by default a known fact that Jio TV और Jio Fiber दोनों का एक साथ में मैं इतना पे कर रहा हूँ. आई एम नॉट जस्ट पेइंग फॉर Jio Fiber. सो दिस वे दे वर्क इट आउट, और प्राइसिंग को बहुत स्मार्टली उन्होंने यहाँ पर रखा. नहीं तो ये टाइन अग्रीमेंट भी हो जाता कि एक के साथ एक आपको लेना पड़ेगा ही पड़ेगा. पर उन्होंने बहुत स्मार्टली क्या बोला, दे हैव नॉट सेड कि जियो फाइबर का 800 एंड 400 टीवी का और आपको ये दोनों लेना पड़ेगा. व्हाट दे हैव सेड इंस्टेड, जियो फाइबर का ही 1200 है और टीवी तो आपको हम फ्री में दे रहे हैं. राइट. अभी जैसे एक वो आया था दैट कोरोना का जो वैक्सीन है वो कोरोना का वैक्सीन फ्री है. ठीक है, वो कोरोना का वैक्सीन जो है वो फ्री है, बट वी विल चार्ज यू फॉर द इंजेक्शन सिरिंज, then we will charge you the doctor fees, we will charge you for the PPE kit. So जो इंजेक्शन फ्री का है, ये सिरेंज का 50 रुपया, डॉक्टर इंजेक्शन लगाने का 500 रुपीज और पीपीई किट अनदर 500 रुपीज. बट द वैक्सीन इज फ्री. वैक्सीन का तो हम कुछ चार्ज ही नहीं कर रहे, वी आर ओनली चार्जिंग दिस, और आपका कॉस्ट आ गया 1050 रुपीज. सो आप सरकाजम समझे यहाँ पर क्या है. सो दिस इज द काइंड ऑफ अरेंजमेंट दे हैव यूज्ड. सो प्रीडेटरी प्राइसिंग में ये लोग फंसे नहीं यहाँ पर. ओके, सो लेट्स गो बैक. तो यहाँ पर वही बताया है, दिस इज प्रीडेटरी प्राइसिंग. एंड देन ग्रुप का वही सेम मीनिंग है जो सेक्शन 5 में हम देखेंगे इंटर ग्रुप में. सो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स डोमिनेंस. तो आप ये देखो, डोमिनेंस रेफर्स टू अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ which enable an enterprise to operate independently of the competitive forces or to affect the competitors or consumers in the of the market in its favor. तो ये मैंने आपके मॉड्यूल से उठाकर यहाँ पर दिया हुआ है. So abuse of dominant position impedes fair competition between the firms, exploits the consumers, and make it difficult for the other players to compete with the dominant undertaking on the merit. Now, abuse of dominant position includes lot of things, जिसमें आपका imposing unfair conditions और pricing आ जाता है, predatory pricing आ जाएगा, limiting production market technical development, creating barriers to entry, applying dissimilar conditions to similar transaction, denying market access, right? Using dominant position in one market to gain advantage in another market. आप देखो इसमें आपको मैं बताता हूँ, मुलुंड में अगर आप देखो वो मैकडॉनल्ड्स के सामने जो ऑटो का लाइन लगता है, आपने देखा वो, वहां पर आप देखो वो जो उनका यूनियन वाले खाली वही ऑटो लगा सकते हैं. इफ समवन एल्स ट्राइज टू कम स्टॉप अ रनिंग ऑटो देयर, तो वो लोग झगड़ते हैं कि आप लोग यहाँ पर कैसे रुके, हाउ डू यू टेक दैट. सो ये क्या हो गया, डिनाइंग द मार्केट एक्सेस. करेक्ट. अब आप देखो आपको क्या ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द डोमिनेंस. अब ये कहां पर आपको मिलेगा, सेक्शन 19 में. सो दिस इज सेक्शन 19 सब सेक्शन 4 विच वी आर डिस्कसिंग हियर. सी ध्यान रखना, सेक्शन 4 आपको बताता है दैट देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन अब्यूज ऑफ डोमिनेंस. ठीक है. और आपका जो सेक्शन 19 है वो यहां पर क्या बता रहा है, व्हाट कॉजेस डोमिनेंस, कि आप डोमिनेंट पोजीशन में हो कि नहीं हो. सो व्हाट कॉजेस डोमिनेंस वो आपको यहां पर बताएगा सेक्शन 19 सब सेक्शन 4 के अंदर. गाइस दिस इज क्लियर, गाइस इज दिस क्लियर, राइट. तो ये दो पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखना. सेक्शन 4 अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को प्रोहिबिट करता है, बट सेक्शन 19 सब सेक्शन 4 बताता है व्हाट इज डोमिनेंस. ठीक है, डोमिनेंस है कि नहीं है. तो पहले तो आपको क्या प्रूव करना होगा, वेदर देयर इज डोमिनेंस और नॉट. once you have it's proven that there is dominance, then we will talk about that there is abuse of dominant position. जैसे कल मैंने आपको बताया था वो होल्डिंग कंपनी वाला, कि अगर आपको होल्डिंग कंपनी बनना है तो उसके लिए पहले आपको कंपनी तो बनना पड़ेगा. अगर आप कंपनी नहीं हो तो हाउ कैन यू बी अ होल्डिंग कंपनी. So just see what are the factors that determine the dominant position. So इसमें है commission shall, while inquiring whether an enterprise enjoys dominant position or not under section 4,
हैव ड्यू रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स नेमली। सबसे पहला यहां पर आपको क्या बता रहा है वो, मार्केट शेयर ऑफ द एंटरप्राइज। सो टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंस और वेदर देयर इज डोमिनेंस और नॉट, तो आप किसको चेक करो, सबसे पहले मार्केट शेयर को चेक करो। नाउ मार्केट शेयर में आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि डोमिनेंस है कि नहीं है। सो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, प्लीज रेफर द स्लाइड्स। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट ईच एंड एवरीथिंग हियर बिकॉज थोड़ा जगह यहाँ पर कम पड़ेगा, तो आई मेड इट काइंड ऑफ अ वर्कबुक बट हियर द फॉन्ट साइज गोज लिटिल broad, so I'll not be able to write it properly, but here I write this is page 9 of the, okay, और हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं what causes dominance। plus this is from section 19 subsection 4 और ये आ गया क्लॉज ए, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मार्केट शेयर। ना आप मुझे बताओ, हाउ डज मार्केट शेयर डिटरमाइन डोमिनेंस? व्हाट इज मार्केट शेयर? व्हाट इज मार्केट शेयर? दिस इज मार्केट शेयर, करेक्ट। एक पर्टिकुलर सेक्टर में उसके कितने कस्टमर्स हैं और आपके पास कितने हैं। वेरी गुड दिया, अ पोर्शन ऑफ मार्केट कंट्रोल्ड बाय द पर्टिकुलर कंपनी, करेक्ट फोरम, कंट्रीब्यूशन इन द मार्केट, दर्शन परफेक्ट, होल्डिंग इन दिस। सो बेसिकली क्या होगा, इफ देयर आर 100 यूनिट्स विच आर सोल्ड बाय और विच आर सोल्ड इन द इंडस्ट्री divided by n units which is sold by the company or by the enterprise, ये आपका मार्केट शेयर बन जाएगा, राइट। सो इफ लेट्स से आई से आप 30 यूनिट्स बेचते हो आउट ऑफ द 100 यूनिट्स विच आर सोल्ड इन द इंडस्ट्री, सो आपका मार्केट शेयर कितना हो गया, 30%, राइट। अगर इंडस्ट्री में टोटल 100 यूनिट्स बिक रहा है तो आपके पास ये, सो ये होता है मार्केट शेयर। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, मार्केट शेयर कैसे डिटरमाइन करेगा डोमिनेंस को? अ वेरी बेसिक रूल, मार्केट शेयर कैसे डिटरमाइन करेगा दैट देयर इज अ डोमिनेंस? सो दर्शन इज मेंशन हायर मार्केट शेयर, तो यहां पर ध्यान रखना, सीसीआई ने क्लियरली बोला है दैट हायर मार्केट शेयर नॉट नेसेसरली would amount to, would not necessarily amount to abuse। ठीक है, हाँ मार्केट शेयर अगर हायर मार्केट शेयर है, द हायर मार्केट शेयर कैन बी अ इंडिकेटिव ऑफ डोमिनेंस। हायर मार्केट शेयर is what it is, preliminary indication of dominance. Higher market share for a longer period of time, बहुत टाइम से आपका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है तो ये आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप चेक करो तो मार्केट शेयर बेसिकली क्या बताता है, मार्केट शेयर आपको बता देता है, इट गिव्स द
information of enterprise with respect to the competitors. Okay. Higher loss bearing capacity. दर्शन तो पीछे ही पड़ गया बेचारा जियो के नहीं, हायर लॉस बियरिंग कैपेसिटी नहीं होगा। हायर लॉस बियरिंग नहीं, यहां पर हम सिर्फ मार्केट शेयर का बात कर रहे हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स आपके पास आते हैं आउट ऑफ द टोटल, राइट। सो अगर आपके पास कंटिन्यूसली आप ही नंबर वन हो, तो दिस इज द प्रिलिमिनरी इंडिकेशन ऑफ द डोमिनेंस। ओके। एक चीज और आपको इसमें ध्यान रखना है, दैट अगर फ्रीक्वेंट शिफ्ट होता है इसमें, इफ देयर इज फ्रीक्वेंट शिफ्ट इन द मार्केट शेयर, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, दैट विल इंडिकेट अ हेल्दी कंपटीशन। जैसे कभी ए नंबर वन पे है, कभी बी नंबर वन पे है, कभी सी नंबर वन पे है। अगर ए कंटिन्यूसली नंबर वन पे है, तो यहां पर क्या दिखेगा कि इस बेचारे का डोमिनेंस है मार्केट में। सो देखना, जस्ट बिकॉज यू हैव अ हायर मार्केट शेयर, दैट नॉट नेसेसरली अमाउंट टू अब्यूज। हायर मार्केट शेयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, that would be the preliminary indication of the dominance. Does this make sense? Does this make sense? Okay, तो ये आया आपके पास मार्केट शेयर। नेक्स्ट अगर आप देखो, नेक्स्ट वो बात करता है साइज एंड रिसोर्सेस ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, तो यहां पर दर्शन आप बोल सकते हो हायर लॉस बेयरिंग कैपेसिटी, जो आपने बताया जियो के लिए, दैट द साइज एंड द रिसोर्सेस ऑफ द एंटरप्राइज। करेक्ट। तो आप इससे डिटरमाइन कर सकते हो वेदर देयर इज डोमिनेंस और नॉट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी एंटरप्राइज के पास, यहां पर एकदम आपका जियो वाला फिट आ जाएगा, सुपीरियर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इन द मार्केट with superior resources, it is what all this is indicative of dominance. Does this make sense? कि आपके पास आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, और आपके जो रिसोर्सेज है वो इतने स्ट्रांग है, इट कैन बी द इंडिकेटिव ऑफ द डोमिनेंस हियर। ओके, तो चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। सो दिस वाज 54, दिस वाज 55, दिस इज स्लाइड नंबर 56। सो देखो स्लाइड 56 बेसिकली यहाँ पर क्या आता है, इट टॉक्स अबाउट द साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। क्लॉज सी, द साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो इसमें क्या आ जाता है, आप देखो ये कैसे पता चलेगा, विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम। अगर आप देखो with respect to, let's say, the volume which you sell, right, this can be with respect to the range of products that you deal in, correct. This can also be with respect to the network, right, जो आपके पास यहां पर है। इन सब से आप क्या डिसाइड करोगे कि आपका डोमिनेंस है कि नहीं है। सो जैसे द वॉल्यूम सोल्ड, और लेट्स से द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स
which are available, correct? The network acceptance with customers. इनसे पता चलेगा कि डोमिनेंस आता है कि नहीं आता है। कस्टमर्स कितने जल्दी आपके गुड्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर के गुड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो ये आपका यहां पर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द डोमिनेंस। फिर आप देखो यहां पर आपके पास और आता है इकोनॉमिक पावर ऑफ द एंटरप्राइज इंक्लूडिंग कॉमर्शियल एडवांटेजेस ओवर द कॉम्पिटिटर्स। तो आप यहां पर देखो दर्शन यहां पर रिलायंस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो सीएस बन, फिर एक बार रिट पिटिशन फाइल करना बॉम्बे हाई कोर्ट में, ठीक है, या सीसीआई में जाना। अगर सीसीआई नहीं सुनता है तो फिर रिट पिटिशन फाइल करना राइट। अगर केस जीता तो करियर तेरा एस्टैब्लिश हो जाएगा, हारा तो भी तेरा करियर एस्टैब्लिश हो जाएगा, बिकॉज लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ दर्शन छेड़ा नाम का एक बंदा आया जिसने रिलायंस को छेड़ा, और अगर वो जीत गया तो जीत गया, नहीं तो लोगों को एटलीस्ट पता तो चल जाएगा कि दर्शन छेड़ा नाम का एक लॉयर है जो कंपटीशन एक्ट में, या कंपनी सेक्रेटरी है जो कंपटीशन एक्ट में एक्सपर्टीज दे रहा है, ठीक। बट एनीवे, अगर हम यहाँ पर इकोनॉमिक पावर में चेक करें, सो ऑन अ सीरियस नोट आई वुड डिस्कस वन केस विद यू। अब यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, हियर दे टॉक अबाउट द कॉमर्शियल एडवांटेज, ठीक है। अगर आप चेक करो तो कॉमर्शियल एडवांटेज आपके पास कितना है, तो कॉमर्शियल एडवांटेज किस में हो सकता है। सो आप अगर कॉमर्शियल एडवांटेज का बात करो, दिस कॉमर्शियल एडवांटेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ size, this can be in the form of capacity, right? This can be in the form of technology, this can be in the form of brand, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आपको ये कॉमर्शियल एडवांटेज मिल सकता है। अब इसमें ना एक बहुत फेमस केस है, थोड़ा सा आप इसके ऊपर रिसर्च करना, यू विल गेट इट राइट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वर्सेस एमसीएक्स डीएक्स, एमसीडीएक्स एसएक्स, इसके ऊपर यहां पर अपना केस हुआ था। अभी देखो यहां पर क्या था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फुल फ्लेजेड आपका ऑटोनोमस, इट इज नेशन वाइड हैविंग ट्रेडिंग टर्मिनल, इनका पूरा सेट है। एमसीडीएक्स जो है कमोडिटीज के अंदर डील करता था, इनका एक डेरिवेटिव सेगमेंट स्टार्ट हुआ, यू ऑल नो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो डेरिवेटिव सेगमेंट स्टार्ट हुआ। अब आप सिंपल सिनेरियो चेक करो, यहां पर एमसीएक्स ने जब डेरिवेटिव सेगमेंट को चार्ज स्टार्ट किया तो एमसीएक्स वाज चार्जिंग सम फीस। व्हाट डिड एनएससी डू, एनएससी वो काम फ्री में करने लग गया। अब वो फ्री में क्यों कर पाया, बिकॉज एनएससी का फाइनेंशियल पोजीशन जो था वो बहुत स्ट्रांग था, द फाइनेंशियल पोजीशन वाज वेरी साउंड, तो वो ये काम कर पाए। बट एमसीएक्स ने डेरिवेटिव सेगमेंट में जब फीस चार्ज किया तो अब ग्रेजुअली होगा क्या, इन्वेस्टर्स एमसीएक्स की बजाय कहां पहुंच जाएंगे, एनएससी में पहुंच जाएंगे, और इसकी वजह से जस्ट बिकॉज दे चार्ज्ड इट फॉर फ्री, यहां पर दे सफर्ड लॉसेस, एमसीएक्स को यहां पर लॉसेस हुआ, और एमसीएक्स ने फिर क्या किया, केस फाइल किया, और जो जजमेंट था वो एमसीएक्स के फेवर में आया कि एनएससी कैन नॉट डू दैट, राइट। दर्शन अभी बोलेगा सर रिलायंस में भी तो यही हुआ था, जियो उनको कई को छोड़ दिया, राइट। पढ़ना वो पूरा जजमेंट, और थर्सडे को जब हम डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट आएगा। तो अब यहां पर ध्यान रखना, ये आपका कॉमर्शियल एडवांटेज हो गया। सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप देखो तो ऑब्वियसली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास, अगर आप देखो ब्रांड उनके पास था, लोग ज्यादा उसको जानते, एनएससी और बीएससी, इट्स लाइक कॉमन। इसके अलावा आप फाइनेंशियल पोजीशन देखो, इनके पास फाइनेंशियल पोजीशन भी था, प्लस इनके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस था, प्लस इनके पास ऑलरेडी जो ब्रोकर था, सप्लाई चेन जिसको आप बोलोगे, वो इनके पास सब सेट था। तो इनको यहाँ पर क्या था, एक कॉमर्शियल एडवांटेज था, और इससे क्या प्रूफ हुआ कि एनएससी के पास क्या है, डोमिनेंस है। गाइस डज दिस मेक सेंस,
ये वाला पार्ट। फिर आप देखो वर्टिकल इंटीग्रेशन और सेल और सर्विस नेटवर्क ऑफ द एंटरप्राइज, हम यहां पर चेक करते हैं। अगर मैं वर्टिकल का बात करूं, सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, तो देखो वर्टिकल इंटीग्रेशन इज नॉट कॉल्ड एज बैड। अगर आप वर्टिकल इंटीग्रेशन का देखो तो वर्टिकल इंटीग्रेशन पर से इज नॉट एंटी कॉम्पिटिटिव। वर्टिकल इंटीग्रेशन becomes एंटी कॉम्पिटिटिव अगर आप यहां पर चेक करो when it results in refusal to deal। if it results in refusal to deal तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, एंटी कॉम्पिटिटिव। अब क्यों, आप इसमें चेक करो, बिकॉज जब आप ये रिफ्यूजल टू डील करने लग जाते हो तो इससे क्या होता है, आप सप्लाई को स्क्वीज आउट कर देते हो। द सप्लाई इज स्क्वीज्ड आउट। ठीक है, इसके अलावा आप यहां पर प्राइस मैनिपुलेशन हो सकता है, करेक्ट। तो ये दोनों चीजें यहां पर होती है और ये दोनों ही क्या है फिर, अब्यूज हो गया आपका। एंटी कॉम्पिटेटिव तो ही, बट ये अब्यूज हो गया। अब देखो आपको इसका एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। वेन यू टॉक अबाउट वर्टिकल इंटीग्रेशन, यू हैव दिस रॉ मटेरियल प्रोवाइडर। ठीक है, यहां पर आपके पास तीन फर्म्स है, एक्स, वाई एंड जेड। दे आर द प्रोड्यूसर्स। अभी ए इसको भी गुड्स देता है, इसको भी रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और इसको भी रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अभी क्या हो गया, ए और जेड दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, वर्टिकल इंटीग्रेशन कर लिया। सो अ वर्टिकल इंटीग्रेशन टेक्स प्लेस बिटवीन दीज टू। So once this vertical integration takes place between the two, अब क्या लफड़ा होगा, अब लफड़ा ये रहेगा that A is not going to deal with Y, A is not going to deal with X। अब आप अल्टीमेटली यहां पर कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपने क्या कर दिया, अब कस्टमर्स के पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। X will not be able to supply goods to the customer, Y will not be able to supply goods to the customer, क्योंकि उनको तो रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा, या अगर कहीं और से मिलेगा तो फिर वो महंगा मिलेगा। तो ये जो वर्टिकल इंटीग्रेशन आपने किया, दिस रिजल्ट्स इन व्हाट, दिस रिजल्ट्स इन डोमिनेंस एज वेल एज दिस रिजल्ट्स इन अब्यूज। ये आया समझ में, ये वाला प्रोविजन आया समझ में, राइट। सो इस टाइप से वर्टिकल इंटीग्रेशन, तो अब बाय सी अगर ए और जेड ने वर्टिकल इंटीग्रेशन किया है तो बाय डिफॉल्ट इट इज नॉट एंटी कॉम्पिटिटिव, but when A refuses to deal with X and Y, then it will become anti-competitive. So A plus Z is not anti-competitive, but ये anti-competitive कब बन जाएगा, when A refuses to X and Y। तो ये क्या बन गया, anti-competitive, राइट। तो आप चाहो तो ये एग्जाम्पल्स भी आराम से वहां पर लिखकर आ सकते हो। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन क्लॉज F। Okay, so this will be slide number what, 59। ये अपन स्लाइड नंबर 59, यहाँ पर मैं स्लाइड नंबर 60 लिख ही देता हूँ सो दैट स्लाइड नंबर का इशू नहीं हो। दिस विल बी 61, देन
This would be 62, 63, this would be 64. चलो अब हम यहां पर चेक करते हैं. Let's start with dependence of consumers on the enterprise. अब अगर आप एग्जाम्पल लो, डिपेंडेंस ऑन कस्टमर्स. सर, कैन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बी इंडिकेटर ऑफ डोमिनेंस? नहीं, यू कैनॉट से, यू कैनॉट से. अब ये एप्पल के पीछे पड़ गया. कैन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बी इंडिकेटर ऑफ डोमिनेंस? नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट नहीं रहेगा. पतंजलि, नहीं, पतंजलि को अगर आपको डोमिनेंट पोजीशन में लेके आना है तो आप मार्केट शेयर के बेसिस पर लाओगे. अब तो मोदी जी और बाबा रामदेव का भी झगड़ा हो गया, वो भी एक दूसरे से बात नहीं करते. 2014-15 में तो बात करते थे, मैगी बैन हो गया था. सॉरी, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था. बट एनीवे, पतंजलि नूडल्स मिला हमें, लेकिन अभी कहाँ कुछ नया प्रोडक्ट मिला. राइट. सो आप मार्केट शेयर के बेसिस पे बात करोगे, रिसोर्सेज के बेसिस पे आप बात कर सकते हो. प्रोबेबली टुडे यू कैन टॉक अबाउट द रिसोर्सेज आल्सो. राइट. देखो अब आता है यहां पर डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर ऑन द एंटरप्राइज. अब सिंपली आप चेक करो, एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये एक अकेला शॉप है, जिसको आप इस तरह से ले लो, ही इज द सोल सेलर. राइट. अब आप मुझे बताओ, हो गया ना डोमिनेंस? बिकॉज अगर एक ही शॉप है, देयर इज, दिस इज द ओनली शॉप हियर. लेट्स से दिस इज अ मेडिकल स्टोर. अकेला यही एक मेडिकल स्टोर अगर यहां पर है, इज द सोल सेलर, तो हो गया यहां पर डोमिनेंस. एंड व्हाई देयर इज अ डोमिनेंस? बिकॉज देयर इज टू मच डिपेंडेंस of customers or the consumers. It uses the word consumer, it doesn't use the word customer, so better you use the word consumer only. Right. तो ये यहां पर आ जाएगा. जैसे आप एग्जाम्पल लो, अभी तो नहीं बोल सकते बट एक टाइम पर दिल्ली में जैसे मदर डेयरी आपका डोमिनेंट पोजीशन हो गया, बिकॉज कस्टमर्स उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थे, बाकी और कोई मिल्क वहां पर मिलता ही नहीं था. राइट. सो दिस इज द डोमिनेंस, क्योंकि यहां पर ये आपका स्ट्रेंथ बताता है. ओके. सो अगर आप यहां पर रिफ्यूजल करते हो इन फुल और इन पार्ट, तो आप यहां पर अगेन मार्केट अब्यूज यहां पे देख सकता है. ठीक है. सो ये आपका हुआ. नेक्स्ट आप देखो यहां पर आपके पास आता है वेर इट सेज दैट मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन whether acquired as a result of status or by virtue of government company or by virtue of otherwise. सॉरी, ये फाइनली हैंग हो गया. सर, इफ अ न्यू शॉप सेट्स अप इट वोंट बी डोमिनेंस. थोड़ा सा इलेबोरेट करके मेरे को बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय न्यू शॉप? अगर आप थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताओ तो इट विल बी बेटर फॉर मी टू केटर द आंसर. If a new shop sets up, it won't be dominance. For example, if it is a medical store and the new shop opened is also a medical store. हाँ, तो आप बोलोगे डोमिनेंस यहां पर कम हो गया.
तो वहां पर डोमिनेंस कम हो गया. बट स्टिल यू कैनॉट से दैट देयर इज नो डोमिनेंस जस्ट बिकॉज अ न्यू स्टोर इज ओपनड. सी, द मोर exclusivity you have, there is more chances of having a dominance, the chances of getting that dominance. यहां पर क्या है आपका, अगर एक और स्टोर वहां पर खुल गया तो आपका डोमिनेंस थोड़ा कम हुआ है. बट विल हैव टू सी व्हाट इज द मार्केट शेयर. सी, आप यहां पर किसी एक फैक्टर के बेसिस पर डिसाइड नहीं कर सकते कि डोमिनेंस है या डोमिनेंस नहीं है. देर आर अदर फैक्टर्स विच यू विल हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन whether there is dominance or not. ओके, तो चलो यहां पर फिर आप देखो. सर आपने जो मेडिकल शॉप का एग्जाम्पल दिया, अगर उसमें वो ज्यादा प्राइस चार्ज करता है तो वो मार्केट अब्यूज होगा. यस, एग्जैक्टली. अब आपने मानव ये पॉइंट बिल्कुल सही है, चलो गुड, आपने ये पॉइंट उठाया. जस्ट बिकॉज यहां पर ये एक ही शॉप है, सोल सेलर है, तो उसका डोमिनेंस तो है, बट क्या ये अब्यूज है? ये अब्यूज हुआ? आंसर इज नो. बाय डिफॉल्ट डोमिनेंस से अब्यूज नहीं होगा. हाँ, अगर ये यहां पर रिफ्यूजल करने लगे, सी आई टेल यू, ये डोमिनेंस से अब्यूज कब शुरू हो जाएगा? The abuse will start when this shop, it starts to refuse either in part or in full with no justification. Without any justification. अगर विदाउट एनी जस्टिफिकेशन ये करे तो प्रॉब्लम है. क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है. फिर देखो, हमारे पास आता है क्लॉज जी. वो बोलता है मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन whether acquired as a result of the status or by virtue of being a government company or a public sector undertaking. तो आप देखो, ये एक्ट जो है ये किसी को भी नहीं छोड़ रहा. मतलब अगर गवर्नमेंट कंपनी भी डोमिनेंस लेकर आए तो भी वहां पर आप बोल सकते हो दैट देयर इज अ डोमिनेंस एंड देयर कैन बी अब्यूज ऑफ दैट. जैसे आप चेक करो, गवर्नमेंट कंपनीज को फायदा होता है कि नहीं होता है? आप लेट्स से गवर्नमेंट को कोई टेंडर निकालना है, इंस्टेड ऑफ स्टेटिंग द बेस्ट वन इज गोइंग टू गेट, यहाँ पर आप क्या करते हो, आप बोलते हो ओनली द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सिर्फ उनको मिलेगा. तो यहाँ पर अब्यूज हो जाएगा. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट मोनोपोलीज. वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट मोनोपोलीज. तो जो ये स्टेट मोनोपोलीज है, दिस मे लीड टू सर्टेन हार्मफुल इफेक्ट्स. राइट? और यहां पर क्या हो जाएगा, अगेन गड़बड़ हो सकता है. या फिर आप ऐसे एग्जाम्पल लो वेर यू गिव और यू स्टार्ट गिविंग preferences to public sector undertakings or the public sector units in tenders and bids. तो वैसे इस कंपनी में कुछ खास बात नहीं है, बस ये है कि वो सरकारी कंपनी है, और क्योंकि वो एक सरकारी कंपनी है तो उसको यहाँ पर बिड मिल गया या जो टेंडर है वो उसको यहाँ पर मिल गया. तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए? दिस विल बी योर स्टेट कॉल्ड एज द स्टेट मोनोपोली. सो जस्ट बिकॉज द स्टेटस, आप ये देखो, पीएसयू इज व्हाट? पीएसयू इज अ स्टेटस, और इसकी वजह से इनको यहाँ पर फायदा हो रहा है. नाउ रीड दिस, मोनोपोली और अ डोमिनेंट पोजीशन वेदर एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द स्टैट्यूट, सॉरी स्टैट्यूट यहाँ पर जैसे आया, और बाय गवर्नमेंट कंपनी. तो गवर्नमेंट कंपनी का जो इसको यहाँ पर स्टेटस मिला हुआ है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का स्टेटस मिला हुआ है, इसके बेसिस पे, देन इट सेज दैट entry barrier including barriers such as regulatory barriers, okay, then financial risk, high capital cost entry, marketing entry barriers, technical entry barriers, economies of scale, higher cost of substitute goods, ये सब भी क्या करता है, आपको डोमिनेंस प्रूव करता है. तो हम यहाँ पर नेक्स्ट चेक करते हैं, क्लॉज एच. अब अगर आप इसमें चेक करो, जितना ज्यादा बैरियर होगा, सी अगेन when you talk about this, the barriers, this can be in the form of
cost, this can be in the form of economies of scale. Okay, this can be in the form of customers, anything, किसी भी तरीके से हो सकता है. ठीक है, बट आपको ये देखना है बैरियर्स कितना ज्यादा स्ट्रांग है. सो यूजुअली द थंब रूल इज व्हाट, दैट हायर द एंट्री बैरियर, this would imply more will be the dominant position. Higher the entry barrier, more will be the dominant position. तो आपको ये ध्यान रखना है, राइट, कि जितना ज्यादा थंब रूल ये रहेगा. जैसे कुछ सेक्टर्स आप चेक करो, जैसे टेलीकॉम सेक्टर हो गया, कोई ऐसी चलते फिरते टेलीकॉम कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता. सेम वे एविएशन सेक्टर. सो ये सब पे आपका एंट्री बैरियर्स रहेगा. देन फर्दर आप चेक करो, दिस टॉक्स अबाउट द काउंटरवेलिंग बाइंग पावर. ठीक है, अब काउंटरवेलिंग बाइंग पावर में आप चेक करना, आपको रेडियो टैक्सी का केस मिलेगा. जब ओला उबर आया था ना, तब इसके ऊपर केस फाइल किया गया था. आई थिंक ओला के अगेंस्ट ये केस फाइल किया गया था. तो यहां पर ये बताया था काउंटरवेलिंग बाइंग पावर का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लो. सो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स. ठीक, अगर आप बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स को देखो तो वहां पर यह बात हो रहा है दैट कैन कस्टमर्स स्विच टू competing suppliers. इसके बेसिस पे भी डोमिनेंस आपका पता चलेगा. अगर yes, then there is no dominance. बट अगर आंसर है no, in that case there is dominance. राइट, वो रेडियो टैक्सी वाला केस था तो वहां पर वही बात हुआ था कि ओला उबर आके यहाँ पे डोमिनेंस कर रहा है, तो कोई ऐसा नहीं है, कस्टमर तो कहीं पर भी जा सकता है वहां पे. करेक्ट, सो देयर वाज नो डोमिनेंस बाय द ओला उबर. मेरू ने केस फाइल किया था, आई थिंक कोलकाता वाला ये केस था. ठीक है, विल डिस्कस दैट केसेस. केसेस के लिए मैंने आपको जैसे बताया, एक्सक्लूसिवली अपना जब चैप्टर एंड होता है तो हम पकड़ के सारे केसेस को उठाकर यहाँ पे ब्रॉडली डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, इट इज द मार्केट स्ट्रक्चर एंड द साइज ऑफ मार्केट. द मार्केट स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ मार्केट अगर आपको बताऊं, सो इट इज बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ मार्केट. व्हाट इज द नेचर ऑफ मार्केट, उसके हिसाब से आप चेक करोगे और डिसाइड करोगे डोमिनेंस है कि नहीं. एंड सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल कॉस्ट, इसमें कुछ ऐसा जैसा बहुत स्ट्रांग नहीं है, राइट, conceptually. Then you have the relative advantage by way of the contribution to the economic development by the enterprise enjoying the dominant position, having or likely to have appreciable adverse effect on the competition. आप ये चेक करते हो. और इसके अलावा अकॉर्डिंगली कुछ रहेगा, डोमिनेंस रहेगा, तो कमीशन फिर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा. अब नाउ व्हाट विच कमीशन वी आर टॉकिंग अबाउट, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. तो सबसे पहले आपको क्या एस्टैब्लिश करना होगा, इफ यू टॉक अबाउट स्टेप वन, you need to establish that there is a dominant position. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट केस ये होता है. सेकेंडली, अगर देखो सेक्शन 4 का अगर कोई भी केस आता है, और प्रैक्टिकली भी अगर आपको कंपटीशन लॉ के अंदर कोई भी केस को समझना है, या यू इंडिपेंडेंटली हैव टू हैंडल द केस. सो स्टेप वन विल बी, you'll have to prove the enterprise or the person has dominant position. Then you will have to prove that there is a abuse. अगर ये दोनों आपने प्रूव कर दिया, इन दैट केस ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इफ यू कैन प्रूव दीज टू, तो हो जाएगा एप्रिशिएबल
एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन एंड देन सीसीआई एक्शन ले सकता है। बट सपोज करो आपने डोमिनेंट पोजीशन ही प्रूफ नहीं किया, तो अब्यूज का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। आपने ये प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ नहीं किया, तो अगेन देर इज नो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। आपने ये प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ कर दिया, ओनली देन यू विल से दैट देर इज अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। सो बोथ दीज आर नेसेसरीज। यू आर जस्ट शोइंग अब्यूज बट देर इज नो डोमिनेंट पोजिशन, तो खत्म। देर इज अ डोमिनेंट पोजिशन बट नो अब्यूज, तो भी खत्म। ये दोनों होना जरूरी है, तभी जाकर आप बोलोगे that there is appreciable adverse effect on competition. Does this make sense? Does this make sense? Right? चलो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। लेट मी सी, मैंने यहां पर कहां पर रखा है, चलो अगेन चेक दिस केस स्टडी। ओके, टेक दिस केस स्टडी और आप मुझे बताओ, इज देयर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन? आप ये क्वेश्चन को शांति से पढ़ो और चेक करके मेरे को बताओ कि क्या ये क्वेश्चन में सेक्शन 4 हिट हो रहा है क्या। सो पढ़ा आप लोगों ने क्वेश्चन को? पढ़ा आपने क्वेश्चन को? ये देर इज अ अब्यूज, यू ऑल आर सेइंग देर इज अ अब्यूज, बट व्हाट इज द अब्यूज? व्हाट इज द अब्यूज हियर? राइट, देर इज स्टेम सेल सर्विसेज जिसका एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप हो गया। अच्छा, सो व्हाट गोज हियर, अगर आप इधर चेक करो, ये एक्चुअली एक आपका लाइव केस लॉ है जिसको एग्जाम्पल यहाँ पर बना दिया गया है। तो यहाँ पर क्या था, देयर इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है, एडीपी में शॉर्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। क्यों है? बिकॉज आप देखो, हॉस्पिटल और स्टेम सेल बैंक का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे।
So that is the reason. Stem cells, you understand? द स्काई इज पिंक, वो मूवी देखो, आपको स्टेम सेल के बारे में और पता चलेगा, राइट? बट एज ऑफ नाउ आप देखो तो वो कोई कनेक्शन नहीं है उसका, ठीक है? सो आप यहां पे देखो, हियर द एंटरप्राइज और द ग्रुप, दिस हॉस्पिटल, करेक्ट, दे मेक द कंक्लूजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय अदर पार्टीज, यस और नो? और इनफैक्ट उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है यहाँ पर, एंड दैट्स द रीजन हॉस्पिटल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। एंड क्यों है, मैं आपको ये रीजनिंग बता रहा हूँ, एंड आई एम राइटिंग ऑल दिस बिकॉज एग्जाम में जब आप आंसर लिखोगे तो यू हैव टू राइट इट इन दैट प्रॉपर मैनर, करेक्ट? आपको ये प्रॉपरली यहाँ पर लिखना होगा। जब आप एग्जाम में इस आंसर को लिखोगे तो ये आंसर आपको प्रॉपरली यहाँ पर लिखना होगा, जिसमें आप क्या मेंशन करोगे, दैट द एंटरप्राइज और द ग्रुप that makes conclusion, right, conclusion of contract subject to acceptance by other parties which is having no connection, you see, having no connection with the contract or with the subject of contract। इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, ये आपका अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हो गया। जैसे अगर आप यहां पर चेक करो, हॉस्पिटल और ये स्टेम सेल बैंक, इन दोनों का टेक्निकली देखा जाए तो देयर इज नो कनेक्शन, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, और फिर भी हॉस्पिटल इस तरह से कर रहे हैं, तो ये आपका क्या बन गया, देयर इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। और इनका जो पिटिशन था, दिस पिटिशन विल बी मेंटेनेबल। आप बताइए, डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? राइट? चलिए फिर एक और क्वेश्चन, लेट दिस बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आप बताओ, क्या यहां पर कुछ गड़बड़ है? क्या दोनों हो सकता है? कॉस्ट के ऊपर सेल कर रहा है। सो बेसिकली व्हाट इज योर पॉइंट? इज देयर अ प्रीडेटरी प्राइसिंग? नो, करेक्ट।
There is no predatory pricing. There is no predatory pricing. Why there is no predatory pricing? Because they are not selling below the cost. अगर इन्होंने कॉस्ट से नीचे बेचा होता तो प्रीडेटरी प्राइसिंग होता, और आप यहां पे क्लियरली बताओगे दैट 5000 is the cost and they are selling it for 5200. So there is no predatory pricing, there is no abuse. Correct. So I hope आपको ये यहां पर समझ में आया. Section 3, Section 4, it has got huge provisions. Now what I'll do, I'll let you know the questions. See, आप वो फोल्डर एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है? तो ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर में यहां पर देखो आपको क्वेश्चंस. नाउ यू सी दिस, यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेल? आ गया 3 mark क्वेश्चन. नाउ यू सी, व्हाट अग्रीमेंट्स आर एंटी कॉम्पिटिटिव? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स डोमिनेंस? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. हु इज अ कंज्यूमर? स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 mark क्वेश्चन. ये अपने को करना है, बट ये अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा. देन यू सी, what are the factors which are taken into consideration by the commission to determine whether they enjoyed the dominant position or not? We just now did that. Section 19, subsection 4. This is asked for 5 marks. And I'll tell you the best part. They expect only the headings. Okay. हमने क्या कर दिया, जबकि हेडिंग्स के अलावा इसके अंदर का मसाला भी भरा है. उनको खाली ये हेडिंग चाहिए, बिकॉज बेयर एक्ट में अगर आप देखोगे तो वहां पर सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखा हुआ है. ओके. हमने यहाँ पे इसके अंदर का एनालिसिस, सो वॉट एवर आई हैव रिटन हियर is what it is all your, you know, the conclusions from the case laws, right? These all are the conclusions from the case law. We have done that analysis. तो आप जितना मर्जी अच्छा इसमें डिटेल में आंसर लिख सकते हो. देन व्हाट ऑर्डर्स, चलो ये हमने का पार्ट अभी तक कवर नहीं किया, तो हम ये बाद में देखेंगे. फिर आप देखो अगेन, how does competition commission determine whether an agreement has an appreciable adverse effect on the competition or not? आया जो डीम्ड वाला आपका प्रोविजन था, राइट? देन यू चेक अप दिस, व्हाट इज मेंट बाय डोमिनेंट पोजीशन. आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राइट? अब कॉम्बिनेशन वाला पार्ट हमने कवर किया नहीं है. नाउ सी दिस, कंपटीशन एक्ट. तो हमारा कल का लेक्चर का जो शुरू का आधी घंटे का डिस्कशन था, दैट इज आस्क्ड फॉर 5 marks, राइट? आई वांट इसका आंसर आप लोग अटेम्प्ट करो और मेरे को दिखाओ. राइट द आंसर एंड send it to me on WhatsApp. Send it to me, I'll check your answer. I want आप इसका आंसर कैसे लिखते हो, ठीक है? You can also read the module to get more information, and I want your answer for this 5 marks के हिसाब से. So your answer should be for 1.5 page. 1.5 page आंसर आपका एक decent आंसर होगा. Just try to write. Then again ये देखो, bid rigging, tie-in agreements, exclusive supply agreements, refusal to deal. ये आ गया. अब आप देखो ये 4 पॉइंट्स आपसे पूछा है 5 मार्क्स के लिए. 1 mark each and 1 mark you mention that all these are void. वर्टिकल अग्रीमेंट्स होते हैं and all these are void, right? अब देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आंसर कर पाओगे. नाउ लेट्स सी, दिस इज, सो इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस कल्यूसिव बिडिंग और बिड रिगिंग में अकर. तो हमने जो वो लिस्ट पूरा देखा था ना, आप देखो ये आपके मॉड्यूल से जो मैंने बताया था, ये देखो इस तरह से हो सकता है, करेक्ट? सो दिस इज देयर. देन पेनल्टीज हमने किया नहीं. व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? कल ही हमने इसको डिस्कस किया था, राइट? और स्टेट द कंडीशंस विच आर कंड्यूसिव टू कार्टेलाइजेशन. तो हम लोगों ने देखा था जो कार्टेल के डेफिनेशंस के अंदर हमने चेक किया था, तो चार्ट हम लोगों ने बनाया यहाँ पे. इफ वी गो लिटिल बैक, this when you control attempt or you attempt to control limit, ये आया आपका इधर आंसर.
फिर कंपटीशन एडवोकेसी है नहीं, ये दो पार्ट हमने अभी तक किया नहीं है. सो विल सी दैट. दैट्स इट. सो ये सारे अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए. सो आई एम वेरी श्योर अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए, यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दोज आंसर्स. आई डोंट नो हाउ ऑनेस्टली यू आर गोइंग टू रिप्लाई फॉर दैट, बट आई रियली फील दैट आप इसको आंसर कर सकोगे. इट इज गोइंग टू बी अ गुड पॉइंट देयर. You'll be able to answer this because most of it we have covered. And the things which are not even asked in the exam, we have discussed those cases also. So with this, we will pack up our today's lecture. Competition law का जो substantial part था वो मैंने आपके साथ cover कर लिया. Next lecture we are going to start with combinations. That's again a short topic. Combinations complete होके फिर हम इसमें process and penalization पे आ जाएंगे. So tomorrow we don't have a lecture. Thursday, Friday and Saturday. I think by Saturday we should be able to pack up this entire part. तो आपका 25 marks का जो portion है ये secure हो गया in 1 week's time. So that's the reason I picked up competition law. और इतने से टाइम में आपका पूरा competition law यहाँ पर complete हो जाएगा. I think Saturday is also way too long. Friday तक मेरे हिसाब से complete हो जाएगा. 6 hours if we get 3 hours on Thursday. Sorry, tomorrow is only Thursday. So हाँ Saturday जाएगा. So Friday and Saturday 6 hours will be able to pack up the entire competition law, right? So that's it for today's lecture. Please practice, revise whatever you have studied. Okay, bye bye, take care.